Hi dear students. Students, this is the class 12th. Welcomes to all of you in my magical classes, RS HOD Chemistry. Dear students, we are in previous lecture we are discussing that the chemical properties of alcohols. So we all continue this topic, and many questions will ask related to this topic. This is the reaction based topic. So all of you pay attention, and students, uh, if you see all the video properly, then maybe you will gain some extra. So it's my humble request to you, you see all videos carefully and try to understand the concept or the theory behind the lecture, behind the topic, behind the theory. When I am explaining all the topic, then you listen carefully and try to understand how we write the reactions, what is the concept of the reaction, and how we write the reaction if it will give in your board examinations or any examinations. Students, we continue the class, that is chemical properties of alcohols. In previous lecture, dear students, we say that alcohol have the both tendency. That one is it is nucleophilic and the second is electrophilic. Means there are two nature. That one is the electrophilic and the second is nucleophilic. Both. So you know that there are three conditions. अल्कोहल मीन्स एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग होती है, एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग होती है, और एक अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल के बीच। तो क्लीवेज त्रितरक होता है। तो इस बिहेव पर हम कह सकते हैं कि अल्कोहल्स बिहेव्स एज द न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक। अब स्टूडेंट्स आइए टॉपिक पर। द फर्स्ट रिएक्शन विच shows the alcohols, that is reaction involving, all of you look here and try to understand, that is reaction involving the cleavage of OH bond. The reaction involving the cleavage of OH bond. Suppose that students, you know that alcohol, this is the alcohol, this is the general formula. If this bond is cleavage, this bond, then this is the known as the cleavage of OH bond. Okay, so at first we discuss the topic. The first reaction which represents the cleavage of OH bond, that is reaction with the first topic that is involved in the cleavage of OH bond, that the reaction with active metals. Reaction with active metals. So all of you listen. If you want to make the notes, then you listen my voice, my sound, and you be continue to make the notes. The first reaction which is cleavage of OH bond, that is the reaction with active metals. Dear students, this property, if in your exam ask that give the reaction which show the acidic behavior, means acidic character of alcohol. So this reaction also represents the acidic character of alcohol. Active metals, just like the sodium, just like the magnesium, just like the aluminium, suppose that any active metal, just like the sodium, just like the magnesium, just like the aluminium, just like the potassium, suppose that we take any alcohol means alkyl group के साथ अगर OH involve होगा, that is the alcohol. So if we take any alcohol, suppose that we take
CH3 CH2OH. This is the alcohol. If this alcohol reacts with active metal, any active metal, आप सोडियम कोई भी ले सकते हैं. सपोज दैट सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को सोडियम से करा लिया. अगर इसी भी एक्टिव मेटल यानी CH3 CH2OH, सपोज दैट इसका हमने रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया, या सपोज दैट हमने CH3 CH2OH अगर इसका रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम से कराया. ऑल दीज आर द एक्टिव मेटल्स. तो दीज एक्टिव मेटल्स इफ रिएक्ट्स, देन व्हाट हैपेंड? You know that sodium contain one positive charge, so this one hydrogen here liberate, so we write here the 2 for balancing, 2 here, then 2 hydrogen liberated. This bond is cleavage. आपने कहा ना रिएक्शन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो ये बॉन्ड आपका क्लीवेज होगा. यहां से इस बॉन्ड का अगर क्लीवेज हुआ तो ये 2 हाइड्रोजन यहां से सेपरेट होकर के किसके फॉर्म में होंगे? H2. अब बचा क्या है स्टूडेंट्स? 2CH3 CH2O and A. The compound that is 2CH3 CH2O and A. अब यहां पर आइए. You know that magnesium contain 2 positive charge. इसके पास कितना चार्ज होता है? 2. तो अगर इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर 2 पॉजिटिव है तो इसमें से इसका होल ट्वाइस, क्योंकि आप जानते होंगे क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी कंपाउंड, जैसे सपोज दैट किसी पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक पर अगर 1 चार्ज है, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखते हो तो AB2 इसका चार्ज यहाँ पे आता है. सेम अगर इसी प्रोसेस को यहाँ अप्लाई करें तो मैग्नीशियम के पास 2 चार्ज है, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस. मीन्स कंपाउंड क्या बनेगा? दैट इज द CH3 CH2O whole twice Mg. And after this bond is cleavage. Here the bond, this bond is cleavage, so this is hydrogen, means liberate also the hydrogen gas. Here it is. Okay. In second condition, you know that aluminium contain the 3 positive charge, so we write here the 3. At first this 3, listen carefully, the 3 molecules. So if the molecule is 3, then involve here the thrice. It means this is also cleavage. अगर यहां से इसका क्लीवेज करेंगे तो इट मींस दैट इज CH3 CH2O होल ट्वाइस Al एंड प्लस इट लिबरेट्स द. देखिए अब इसको अगर बैलेंस करेंगे, बिकॉज यू नो दैट एल्यूमिनियम कंटेन द 3 पॉजिटिव चार्ज, सो वी राइट हियर द होल थ्राइस. होल थ्राइस मींस वी राइट हियर द 3. It liberates the hydrogen, so it is not balanced. How not balanced? Because if we write here the 3, then hydrogen is 3. So if we write here the 3 2, then it is not balanced. Then what we write? We write here the 6. How we write here 6? Because there the 6 hydrogen, so we write here the 3. So this is balanced. And how many this is? Whole 6. It means we write, if we write here, listen carefully, how many here? The 6. So if we write here the thrice, then here the aluminium also we write, because here the 6 we write, so we write here the also 2, then 2 3 ja 6, so then it is the 6, and aluminium how many? 2, so we write here also the 2. So because this is 2 3 ja 6 and aluminium 2, so this is the balanced equation. So dear students, all these reactions show the acidic character. अब अगर क्वेश्चन आप में आता है कि why अल्कोहल शो द एसिडिक कैरेक्टर, तो आप सीधे इसके बाद रिएक्शन के बाद नीचे लिखेंगे कि ऑल दीज रिएक्शंस शो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल. अब पूछता अगर क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है, तो आप लिखेंगे कि द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. जब OH बॉन्ड आपका टूटेगा तो ये किसमें निकलेगा? H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा. तो नीचे आप लिखेंगे कि द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ alcohol is due to the cleavage of OH bond. After this you will write. Okay, so this is the first characteristics by which we show that this is the cleavage of OH bond. अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आप में आता है, यहाँ आप नीचे नोट्स करके राइट कर सकते हैं कि वाटर, अगर आपसे कह दिया जाए कि वाटर और अल्कोहल दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर. यहां आप लिख सकते हैं नीचे कि वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल. वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, बेटर प्रोटॉन डोनर देन
अल्कोहल, अल्कोहल इट मींस अगर वाटर प्रोटॉन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, that it means that is water is stronger acid than alcohol. ओके, अल्कोहल्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच इज बेटर, विच इज स्ट्रॉन्गर, वाटर और अल्कोहल्स, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज वाटर इज द बेटर प्रोटॉन donor than alcohols. Maybe all of you understand this. So dear students, this is the reaction which involves reaction with active metals and these reactions show the acidic character. क्यों acidic character show कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर से ये liberate होकर के H positive देता है, तो ये all these reactions show the cleavage of OH bond. So this is the first example of cleavage of OH bond. Now we discuss, listen carefully. Now we discuss the second means B property which show the cleavage of OH bond. All of you look here and try to understand. Dear students, the second reaction which show that is reaction with metal hydride. All of you look here. The second, that is reaction with metal hydride. मेटल हाइड्राइड्स। अब कोई भी अल्कोहल अगर मेटल हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्राइड मींस कोई मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कंपाउंड बनेगा, दैट द मेटल हाइड्राइड। सपोज दैट हमने कोई भी लिया मेथाइल एथाइल अल्कोहल, हम कोई ले लें, सपोज दैट हमने ले लिया CH3 CH2OH, ये द बॉन्ड। अगर इससे कोई भी मेटल हाइड्राइड रिएक्शन करा, सपोज दैट दिस इज द सोडियम, तो दिस इज द सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस यही है कि यहां से इस बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगे और ये फॉर्म क्या कर लेंगे, H2। अब ये सोडियम, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहीं पर सोडियम लग जाएगा, तो मीन CH3 CH2 क्या हो गया, O, CH3 CH2O एंड लास्ट में क्या हो गया, Na। दिस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज सोडियम मेथॉक्साइड, sorry, sodium ethoxide. Two carbon are there, so the name of this is sodium, how many carbon, two, two के लिए ethoxide, the name of compound that is sodium ethoxide। अब आप यहाँ कोई अल्कोहल ले सकते हैं, यहाँ कोई भी मेटेलिक हाइड्राइड ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लेंगे, जो भी हाइड्राइड्स आप लेंगे तो सेम प्रोसेस आपका होगा। तो कोई भी मेटेलिक हाइड्राइड अगर इससे रिएक्शन कर रहा है तो इसमें भी देखिए क्लीवेज किसका हो रहा है, OH बॉन्ड का। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ reaction involving the cleavage of OH bond. Now we discuss the third reaction, that is the third point for this reaction with carboxylic acid. Reaction with carboxylic acid. This reaction is known as the esterification reaction. Esterification reaction. Listen carefully. Reaction with carboxylic acid. Dear students, look here. If we take the any alcohol, अगर हम किसी अल्कोहल को लेते हैं, मेथाइल एथाइल जो भी अल्कोहल हो, सपोज दैट हमने लिया आपका CH3 CH2OH, you know that this is ethanol, ethanol। अगर हम इसका किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, आप जानते होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में द कंपाउंड कंटेन द होस्ट COOH ग्रुप। अब कोई भी हम ग्रुप ले लें, सपोज दैट हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं CH3COOH ले लें, तो देखिए होगा क्या, CH3COOH। मान लीजिए हमने इसको ले लिया एथेनोइक एसिड, टू कार्बन आर देयर, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज एथेनोइक एसिड। क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने, टू, टू के लिए एथेन, ई को हटा करके COOH अगर जिसमें होगा उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। और ये रिएक्शन ऑलवेज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑल ऑफ यू लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड
what happened? Dear students, this is the cleavage of this bond, OH bond. ये यहां से क्लीवेज किया. अब जरा स्टूडेंट सुनिए, अब ये OH इससे रिएक्ट कर लेगा this, then form what compound? This is water. OH and H कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? वाटर. अब जरा बताइए बचा क्या स्टूडेंट्स? यहां पर बचा CH3COO और यहां पर क्या बचा? CH3CH2O. लिसन, यहां पर बचा CH3CO और यहां पर भी O है. इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हम इसको डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? CH3COO, एक ऑक्सीजन है और एक CH3COO और ये पलट जाएगा आपका, हो जाएगा CH2CH3. क्योंकि आप जानते होंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, इसलिए आप इसको CH3 को कभी बीच में नहीं लिख सकते, हमेशा CH3 कहां जाएगा? किनारे. तो आपका हो क्या गया? यहां पर देखिए बचा कितना? CH3CO. यहां से इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ये OH और H रिएक्ट करके क्या बना लिए? वाटर. यहां बचा क्या? CH3CO और ये CH3CO इसके साथ कंबाइन करेगा तो CH3COO और यहां बचा CH2CH3. ओके. अब देखिए ये COO है, इसका मतलब एस्टर हो गया. अब एस्टर बना. अब देखिए एस्टर का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? इस साइड में कितने कार्बन है? 2 और इस साइड में कितने कार्बन है? 2. अब देखिए ये ग्रुप किससे आया है? CH3CO. ये ग्रुप आया है एसिड से और ये किससे आया है? अल्कोहल से. ये वाला ऑब्टेन किससे आपने किया? एसिड से किया है. ये वाला ग्रुप किससे आपने किया? अल्कोहल से. तो इस साइड में कितने कार्बन है? 2. फॉर 2 यू नो दैट एथ, तो एथाइल. और इधर भी कितने कार्बन है? 2. एथेनोएट. एस्टर के नोमेनक्लेचर के लिए हम सेकंड जो आपका होगा उसके लिए क्या लगाएंगे? OH. तो हो जाएगा एथाइल एथोनेट. तो इस रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. तो अगर स्टूडेंट्स आता है कि व्हाट इज द esterification reaction, then you write that when the alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, then the ester is formed and this reaction is known as the esterification reaction. Maybe all of you understand? You take any alcohol here, you take any acid here, you take concentrated sulfuric acid and after this the एस्टर इज फॉर्म. अगर यहाँ कोई भी अल्कोहल आप लेंगे, मेथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, अगर यहाँ कोई भी एसिड लेंगे, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, तो ऑलवेज इस तरह के एस्टर का फॉर्म होगा. कैसे होगा? प्रोसेस सेम है. इसमें से क्लीवेज होगा हाइड्रोजन का. ये क्लीवेज इस OH से रिएक्ट करके आपका वाटर बना लिया. फिर जो आपके कंपाउंड्स इसमें के बचेंगे दोनों को आप क्या करेंगे? कंबाइन कर लेंगे. दैट इज फॉर्म द एस्टर. कोई भी एस्टर आपका हो सकता है. जैसे यहाँ एथाइल एथेनोइट हुआ. अब जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे जैसे कंपाउंड आप यहाँ अल्कोहल इसको लंबा लेते जाएंगे, वैसे वैसे अल्कोहल भी एस्टर भी आपका फॉर्म होता जाएगा. तो दिस रिएक्शन इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. अब डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में एक ऑर्डर आप देख लीजिए कि किस तरह का ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी के बिहेव पे. डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, reactivity of alcohol in esterification. esterification इसका ऑर्डर क्या है? यानी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल में एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा एस्टरिफिकेशन यानी फास्टर क्या होगा? CH3OH. इसके बाद अगर आप चलेंगे तो CH3CH2OH. अब जैसे जैसे यहां पर मान लीजिए कितने हैं? 2. अब जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, सपोज दैट हम यहां लिख सकते हैं CH3CH2 होल ट्वाइस CHOH. देखिए इस कार्बन की वैलेंसी अगर देखा जाए तो इस कार्बन की 2 यहां हो जाएगी, 1 इसके साथ 3, इसके साथ 4 हो गई. अब इससे कम होगी अगर यहां थ्राइस कर लें हम. थ्राइस मीन CH3CH2 होल थ्राइस. अब यहां COH हो जाएगा. तो इस तरह यह है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल का काम कौन करेगा? मेथेनॉल. इससे कम एथेनॉल. इससे कम जैसे जैसे आपका, ये देखिए आपका कैसा है, ये दोनों 1 डिग्री है. ये कैसा आपका हुआ? 2 डिग्री. और ये क्या हुआ? 3 डिग्री. ये तो जनरली ऑर्डर हुआ किसका? अल्कोहल्स का. अब इसी ऑर्डर आप कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें एस्टरिफिकेशन में एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है और ये क्या रिएक्ट करता है भाई?
अल्कोहल। तो अल्कोहल का तो ऑर्डर आपने देख दिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम ऑर्डर। पहले आपका सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? HCOOH, ये सबसे पहले है, तो इसका सबसे ज्यादा। इसके बाद आएगा CH3COOH। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ऑर्डर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब मान लीजिए हमने इसका यहां पर CH3 होल ट्वाइस लिया, COOH हो गया। अब आगे जैसे होगा इसका मान लीजिए क्या होगा? थ्राइस हमने ले लिया, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा CH3 होल थ्राइस COOH। अब अगर हम वैलेंसी को देखें तो कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि यहां पर हम कार्बन लगाएंगे, इस कार्बन देखिए वैलेंसी कितनी होगी? 2। देखिए यहां से CH3 होल ट्वाइस C। तो अब अगर आप देखेंगे C है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है यहां पर? अगर इस पूरे हम कंपाउंड को लिखें पहले, तो CH3 होल ट्वाइस C और COOH अगर लगाएंगे तो यहां पर फिर क्या होगा? CH भी होगा, क्योंकि 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी एंड 2 4। यहां पर देखिए ये थ्राइस हो गया तो 3 एंड इसके साथ, सॉरी ये आपका इसको साथ कंपाउंड लिखेंगे COOH है। अब इसके साथ केवल एक कार्बन होगा, क्योंकि 3 वैलेंसी इसकी यहां हो गई और एक इसके साथ हो जाएगी, कितनी हो गई? 4। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। तो ये ऑर्डर है कि अल्कोहल में आपने लिखा, अल्कोहल का भी क्या ऑर्डर था? 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने लिखा कि सबसे पहले आपका क्या होगा? मेथेनोइक एसिड, फिर एथेनोइक एसिड, फिर इसका अगर करेंगे तो हो गया प्रोपेनोइक। इसमें देखिए कार्बन कितना हो गया? 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। अगर इसमें करेंगे 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? घटता जाएगा। तो दिस इज द थर्ड एग्जांपल which shows the cleavage of OH bond. Now we discuss the next, that is now dear students, we discuss the next example, that is reaction with Grignard reagent. The fourth example for this, that is reaction with Grignard reagent, ABCD. Reaction with Grignard reagent. Yes, this is the reaction with Grignard reagent. You know that, dear students, the general formula of Grignard reagent is RMgX. Suppose that we take any alcohol, this is the alcohol. If we write Grignard reagent means RMgX, what happened, dear students? This reaction also slow the cleavage of this bond, OH bond. यहां से क्लीवेज हुआ। अब ये क्लीवेज हुआ क्या होगा? ये एक साथ हो गया, that one क्या बन गया भाई? RH। आपका हो गया RH एंड प्लस, अब बचा क्या भाई? R बचा OMgX। दिस कंपाउंड इज फॉर्म, ओके, ROMgX, ROMgX, इट मींस एल्केन इज फॉर्म। क्या फॉर्म हुआ? एल्केन। तो इफ अल्कोहल रिएक्ट्स विद Grignard reagent देन फॉर्म एनी अल्कोहल। सपोज दैट हमने कोई भी यहां ले लिया, अगर सपोज दैट अल्कोहल हमने ले लिया CH3 CH2OH और किसी भी Grignard reagent से करा दें, हमारे लिए CH3 या सपोज दैट हम Grignard कोई भी ले सकते हैं, हमारे हमने ले लिया C2H5 MgBr, देन व्हाट हैपेंड? सेम प्रोसेस, ये क्लीवेज हो जाएगा, ये इससे रिएक्ट किया तो ये C2H6 हो गया। 5 एंड 1 कितना हो गया? 6 डियर स्टूडेंट्स। तो 1 क्या गया? C2H6 एंड प्लस, अब देखिए यहां पर क्या बचा? CH3 CH2O, CH3 CH2O और MgBr, this. So if the Grignard reagent reacts, this is also the cleavage of O bond. Maybe all of you understand. Now we discuss the next property for this, that is fourth example for cleavage of COH bond. Dear students, the 4 characteristics that we write here. Next, the 5th characteristic, that is the reaction with, all of you look here, reaction with, all these reactions show the cleavage of OH bond. Reaction with acyl chloride, reaction with acyl
chloride and the same thing, that is one acyl chloride and second is the acid iron hydride and acid iron hydride. Look here, reaction with acyl chloride and acid iron hydride. This reaction is known as the acylation reaction. Acylation reaction. Look here, reaction with acyl chloride. You know that if any compound contain the acyl chloride, then the functional group, that is the COCl, इसके पहले कोई अल्काइल ग्रुप होगा. एंड एसिड आयन हाइड्राइड, अगर डियर स्टूडेंट आयन हाइड्राइड आ गया तो आयन हाइड्राइड का मतलब जो जनरल फार्मूला होता RCO होल ट्वाइस O, ये इसका जनरल फार्मूला किसका, एसिड आयन हाइड्राइड का, दिस. एंड अगर एसाइल क्लोराइड उसका क्या होगा, COCl फंक्शनल ग्रुप. अब आप किसी भी अल्कोहल को ले लीजिए, मान लीजिए हम मेथाइल एथाइल प्रोपाइल किसी को लेते हैं, मान लीजिए एथेनॉल को लेते हैं. लुक हियर, एथेनॉल में क्या होगा आप ये जानते होंगे, एथेनॉल का मतलब होता है CH3CH2OH. अब अगर हम रिएक्शन को थोड़ा इजी करना चाहें तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं. देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये भी आपका इथेनॉल स्टूडेंट्स, दिस इज एथेनॉल. अब इसका रिएक्शन आप चाहे एसाइल क्लोराइड से करा लीजिए, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड कराइए. अब कोई भी एसाइल क्लोराइड लेंगे, मान लीजिए हमने कहा COCl फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके पहले कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं आप. अब अल्काइल में मेथाइल एथाइल प्रोपाइल आप कुछ लो स्टूडेंट्स, तो आर की जगह हमने मान लीजिए लिया CH3COCl. अब देखिए इसका नेम क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, तो पहले एथेन लिख देंगे. और जिसमें भी COCl ग्रुप आता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड. क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, ऑयल क्लोराइड. तो इसका नेम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एथेनोइल क्लोराइड. क्यों भाई, क्योंकि यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन के लिए आप पहले से भी जानते हैं हम ईथेन लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट बताया गया था ना, तो 2 के लिए एथ हो गया तो ईथेन, और ई को हटा के अगर COCl फंक्शनल ग्रुप आएगा तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑयल क्लोराइड. तो नेम क्या हो गया बच्चा पार्टी, एथेनोइल क्लोराइड. अब इसका रिएक्शन आप किसी भी अल्कोहल से करा सकते हो भाई, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, किसी से भी करा लो बच्चा, तो बचेगा क्या. अब अगर इससे मान लीजिए हम इथेनॉल से कराते हैं तो देखिए ये क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड अगेन होगा भाई. अगर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हुआ तो ये यहां से क्लीवेज हो गया. अब बताइए रिएक्ट करके क्या बना लिया भाई, HCl बन गया. ये रिएक्शन होता है पायरिडीन के प्रेजेंस में. किसके प्रेजेंस में होता भाई, पायरिडीन के प्रेजेंस में. अब क्या होगा, ये HCl तो निकल गया, अब बचा क्या भाई, यहाँ पर बचा CH3CH2 और ये कंबाइंड एक साथ हो गए, तो बच्चा बनेगा क्या, CH3COO CH2CH3. लुक हियर, देखिए यहां से बना CH3CO, हमने CH3CO लिख दिया. यहाँ क्या बचा, OCH2CH3 OCH2CH3 हमने लिख दिया. और क्या बना भाई, HCl, ये आपका HCl बन गया. अब अगर इसका नेम लिखना हो तो देखिए COO एस्टर आ गया ना, इसमें कितने कार्बन है, 2, इधर भी कितने हैं, 2, तो हो जाएगा इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट, ये बन गया. अब इसके प्लेस पे अगर हम एसिड हाइलाइड के प्लेस पे हम एसिड आयन हाइड्राइड लें तब क्या होगा, सेम रिएक्शन स्टूडेंट्स होगा, बट थोड़ा सा क्लियर करना है. अब एसिड आयन हाइड्राइड अगर हम मान लीजिए इसी प्लेस पे ले रहे हैं तो बच्चा क्या होगा, देखो जरा, एसिड हाइलाइड में स्टूडेंट्स ये होगा सेम ऑफ अल्कोहल, जैसे आपने लिखा तो ऐसे फिर लिख लो, HOCH2CH3, ये बच्चा पार्टी क्या हो गया, इथेनॉल हो गया. ओके, अब आइए आप एसिड एनहाइड्राइड ले रहे हैं. हम एसिड एनहाइड्राइड क्या होगा, हमने बताया कि एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है RCO होल ट्वाइस O. अब R के प्लेस पे आप कुछ लिख सकते हो जिसका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, यानी CH3 C2H5 C3H7, कुछ भी लिख लो भाई. तो R की जगह पे हमने क्या लिख दिया, देखिए CH3 लिख दिया. इसके बाद आपने लिखा R, देखिए आपने फॉर्मूला क्या लिखा था इसका, आपने यही लिखा था RCO होल ट्वाइस, तो R की जगह हमने CH3 ले लिया, ये CO और ये CO होल ट्वाइस हो गया, ये दिस. यू अंडरस्टैंड.
देखिए ये हो गया एसिड एंड हाइड्राइड। अब देखिए बच्चा फिर क्या होना है, सेम प्रोसेस, यहाँ से इसका क्लीवेज हो गया। और अगर क्लीवेज होगा तो कैसे क्लीवेज होगा, ये क्लीवेज करके ये एक साथ हो गए, इतना क्या बन गया भाई, CH3COOH बन गया। ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा भाई, पायरीडीन के प्रेजेंस में। तो बन क्या जाएगा डियर स्टूडेंट, CH3COOH। देखो CH3COOH। अब बचा क्या भाई, यहाँ बचा CH3CO, ये बन गया। तो आगे बन क्या गया भाई, CH3COO CH3 ओके। देखो CH3CO OCH2CH3 एंड प्लस ये बन गया। अब इसका नेम क्या होगा, सेम वही चीज होगा, 2 कार्बन एथाइल एथेनोएट। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आल्सो एथाइल एथेनोएट। maybe all of you understand that, and the name of this compound that is ethanoic acid, क्योंकि COOH है, ओइक लगेगा, 2 कार्बन है, that is ethanoic acid. Maybe all of you understand. So all these reactions dear students are the example of cleavage of OH bond. Maybe all of you understand, and these are also known as the acylation reaction. तो अगर आपसे स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि what is the acylation reaction, then you write that if the alcohol reacts with acyl chloride or acid anhydride, then ester is formed in the presence of pyridine, and this reaction is known as acylation reaction. Maybe all of you understand. Now we discuss the next reaction involving a cleavage of dear students, this is the first point. The first point we have completed, that is reaction involving cleavage of OH bond. अब हम किसको पढ़ेंगे, CO bond के बारे में. Now we discuss the second point, that is reaction involving the cleavage of, here that is CO bond, CO bonds. This is the second point, reaction involve cleavage of CO bond. CO bond मतलब क्या होगा बच्चा, ये तो आपका यहाँ ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप होगा, या इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें हमेशा टर्शियरी मींस 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम कौन होगा 2 डिग्री, और उससे कम कौन सा होगा 1 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर 1 डिग्री, दिस इज द टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। अब हम सेकंड पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब हम CO बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जरा स्टूडेंट देखिए, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, अगर अल्कोहल अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो किस बॉन्ड का क्लीवेज करेगा, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, आप ये जानते होंगे जो हैलाइड्स होते हैं HCl, HBr, HI होते हैं, तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम HBr, और उससे कम रिएक्टिव कौन होगा HCl। और ऑर्डर इसका हमने क्या बताया, ये तो ऑर्डर किसका हुआ हैलाइड का। अल्कोहल का हमने क्या बताया 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड किसका होता n डिग्री। ये आपका किसके लिए होता है अल्कोहल्स का ऑर्डर है, और ये किसका है हाइड्रोजन हैलाइड का ऑर्डर है, हाइड्रोजन हैलाइड का ऑर्डर है। अब जरा इस पे रिएक्शन आइए, हमने कहा रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, किसी भी अल्कोहल का अगर अल्काइल हैलाइड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, मान लिया हमने अल्कोहल लिया, ये अल्कोहल है, इसका रिएक्शन सपोज दैट हम HCl गैस से करा रहे हैं। अब क्या होगा बच्चा, अगर हम HCl गैस से कराएंगे तो हमेशा ये रिएक्शन जो जनरली होता है एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होगा। अब एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करा करके मींस इसको हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, देखो होगा क्या, इसमें इस बॉन्ड का आपने कहा ना CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होगा,
इसमें हमेशा CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। मीन्स क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज कर गया। अगर ये बॉन्ड क्लीवेज किया तो आपका क्या बन गया, वाटर। अब आइए भाई, बचा यहाँ क्या, Cl और R एक साथ कंबाइन कर गए तो आपका क्या बन गया, RCl, एल्काइल क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर हम कोई अल्कोहल ले लें भाई, इसकी जगह पर सपोज दैट हमने ले लिया CH3 CH2OH ले लिया, इसकी जगह पे हम HCl ले सकते हैं, ठीक है। H जनरली HCl होता है, अभी आपने कहा कि HCl जो होता है सबसे लेस होगा। अब इनमें रिएक्टिविटी जनरल हो जाती है, तो जनरली अगर हम फिर HCl के प्रेजेंस में अगर लेते हैं, HCl गैस के प्रेजेंस में, इसको हम आयन हाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में अगर इसको हम हीट करते हैं तो सेम क्या होगा, इस बॉन्ड का यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, ये इससे रिएक्ट कर लेगा। तो फॉर्मेशन क्या किया भाई, CH3 CH2 Cl एंड प्लस क्या बन गया, वाटर। तो दीज रिएक्शन शो द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ओके, जनरली स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इफ halogen if alcohol reacts with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 reaction, this reaction is known as a Group's method. GROOV'S, Group's method. Generally names में आता है कि what is the Group's method? Then you write that when alcohol reacts with HCl gas in the presence of anhydrous ZnCl2, then this reaction is known as the Group's method, or the preparation of alkyl halide for this method that is known as the Group's method preparation process. Maybe all of you understand. Now dear students, we discuss the second characteristics for this reaction with phosphorus halide. The second example, that is reaction with phosphorus halide. Now we discuss the second example for this reaction with phosphorus halide. Phosphorus halide. In the chapter of haloalkane and haloarine, you have completed this reaction. अगर अल्कोहल, ध्यान समझिएगा, अल्कोहल अगर दो कंडीशन होती है, एक तो फास्फोरस ट्राईहैलाइड और एक होता है अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, फास्फोरस पेंटाहैलाइड। ध्यान दीजिएगा, दो है, एक फास्फोरस ट्राईहैलाइड है और एक फास्फोरस पेंटाहैलाइड है। ध्यान समझिएगा, दिस इज द फास्फोरस ट्राईहैलाइड, फास्फोरस ट्राईहैलाइड, and this is phosphorus pentahalide, phosphorus pentahalide। अब देखो बच्चा क्या होगा, और ध्यान समझिएगा, दोनों में प्रोडक्ट चेंज होगा। अब किसी भी आपने कहा कि क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज होना है, यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज होना, लेकिन क्लीवेज होगा तो कैसे, अगर आप ट्राई यानी 3 वाला लेंगे, थर्ड वाला कंपाउंड लेते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, सबसे पहले बहुत ध्यान समझिएगा, 3 अल्कोहल्स में एक ट्राई है और एक पेंटा। ट्राई में क्या होगा, इसमें से पहले एक, ध्यान दीजिए, इस बॉन्ड का पूरा क्लीवेज हो गया, अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो इस प्लेस पे एक हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है, तो ऐड क्या होगा, RX। अब बताइए क्या हुआ, यहां पर से OH निकला, यहां क्या बचा P, और यहां क्या बचा 2 क्लोरीन बचा। मेरी बात समझिएगा, एक तो आपका मेन जो कंपाउंड आपका है वो आपका PO, ध्यान समझिएगा, यहां से आपने PX3 से कंपाउंड करा लिया, यहां से आपका R है। अब एल्काइल ग्रुप अगर आपने एक हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो आपका RX का फॉर्मेशन कर दिया। अब जरा सुनिए, इसमें कंपाउंड कितने, 3। अब जरा सोचिए, अगर आप 3 आप इसमें करेंगे तो यहां पर ये कितना हो गया भाई, 3। अब अगर ये 3 है, R3 हुआ तो यहां पर कितना करोगे, 3। अब बताइए H कितना हुआ स्टूडेंट्स, 3, P कितना हुआ 1, एंड ऑक्सीजन कितना हुआ 3, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, H3PO3। देखिए ध्यान से, इधर H3 है, H3P1 एंड ऑक्सीजन 3, H3PO3, ये फर्स्ट कंपाउंड हुआ। अगर हम इससे कराएंगे पेंटा से तो यहाँ पर कितने हैं, 5। अब देखिए ये टूटेगा कैसे, पहले एक Cl तो इस बॉन्ड क्लीवेज के साथ यहाँ पर ऐड हो गया, तो बन क्या गया, RX प्लस। अब जरा सुनिएगा, इसमें से मेरी बात समझिए,
यहां पर बचा एक, देखिए ध्यान से, ये इसके साथ सेपरेट हुआ। अब इसमें से एक हाइड्रोजन के साथ सेपरेट होकर के ये HX का फॉर्मेशन कर लिया। अब बचा क्या यहाँ P बचा, एक ऑक्सीजन बचा एंड 3Cl बचा। तो फॉर्मेशन क्या हो गया, POX3। मेरे पास मुझे ध्यान से पहले कंडीशंस क्या है। अब इसमें आप देखिए जरा, तो इसमें आप लिख रहे हैं P। अब यहां पर जो भी लेंगे आप हाइड्रोजन, ये आपका यहाँ फास्फोरस है, ये 3 1 4, देखिए 3 and 1 4 and 1 कितना हो गया 5। अब कोई भी आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप फास्फोरस पेंटा लेंगे, ट्राई लेंगे, जो भी लेंगे, ये आपका बन जाता है कंपाउंड दैट इज फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड। ये जनरली ये आपका फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड है, फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड। अब अगर इसका देखा जाए तो ये हो गया H3PO3 दैट इज द फास्फोरस एसिड। ये आपका बन गया कंपाउंड दैट इज फास्फोरस एसिड। अब जरा सुनिए, यहां पर हम कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, जैसे हमने सपोज दैट इस पे हमने ले लिया 3CH3CH2OH। यहां पर हम कोई हमने ले लिया, मान लिया PCl3 ले लिया, तो क्या होगा बच्चा, सेम यही चीज आएगा। सेम हमने क्या होता है, एक इसका 3 इसके साथ, ये आपका क्लीवेज यहां से हो जाना है, ये क्लीवेज हुआ। अब अगर क्लीवेज होगा तो ये क्लोरीन यही ऐड हो जाएगा, तो आपका हो गया 3CH3CH2Cl। अब प्लस, अब बताइए बच्चा क्या हुआ, एक फास्फोरस यहां से, 3 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, तो बन क्या गया, सेम हुई H3PO3। तो ये आपका हो गया फास्फोरस एसिड, अब सपोज दैट इसके प्लेस पे यहां पर हम यही कंपाउंड सेम फिर ले लें, CH3CH2OH। अब इसका हम PCl5 से करा लें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो सेम क्या होगा इसमें से, ये आपका यहां से क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड। अगर क्लीवेज हुआ तो एक क्लोरीन पहले ही लग गया, तो बन क्या गया CH3CH2Cl एंड प्लस क्या हुआ, इसमें से जब इसका क्लीवेज हुआ तो अब यहां पर एक इससे रिएक्ट करके HCl बना लिया, HCl, और क्या बचा, अब इसमें बचा POCl। देखिए ध्यान से, लास्ट में इसमें क्या बचेगा, POCl3। तो दिस इज द फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। हाइलाइड मतलब यहां पर क्लोरीन होगा, क्लोराइड होगा, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो आप कोई भी अल्कोहल डी स्टूडेंट्स यहां लेंगे, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे तो यहां आपका हेलोएल्केन बनेगा, हेलोएल्केन बनेगा और फास्फोरस एसिड बनेगा। लेकिन अगर पेंटा से आप कराएंगे तो आपका हेलोएल्केन बनेगा और POCl3 और HCl बनेगा, यानी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो दीज आर द रिएक्शन which is generally cleavage of CO bond. Now we discuss the third reaction for this, that is reaction with ammonia. The third example of cleavage of CO bond, that is reaction with ammonia. All of you look here and try to the next reaction, that is reaction with ammonia. The third example, that is reaction with ammonia. Reaction with ammonia. You know that ammonia, the general formula of ammonia is NH3. अगर कोई भी, ध्यान समझिए, कोई भी अल्कोहल लेते हैं, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, जो भी अल्कोहल लेंगे, सपोज दैट हमने ले लिया CH3CH2OH। अब इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। ये रिएक्शन होता है Al2O3 के प्रेजेंस में, एल्यूमिना। Al2O3 मींस एल्यूमिना। अगर हम इस रिएक्शन को Al2O3 के प्रेजेंस में कराएंगे, ये रिएक्शन नियर अबाउट होता है 633 केल्विन में। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, सेम ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने कहा कि क्लीवेज आप कौन सा कर रहे हो, ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज हुआ। अब जब ये क्लीवेज होगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा डियर स्टूडेंट्स, वाटर। अब बचा क्या यहाँ, CH3CH2 और यहाँ बचा NH2, तो बन जाएगा CH3CH2NH2। कितने कार्बन है, 2, फॉर 2 कार्बन इथेन, और NH2 के लिए एमाइन लगता है, तो इथेनामाइन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज एथेनामाइन। अब यहाँ कोई भी अल्कोहल ले लेंगे,
अल्कोहल का अमोनिया से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा याद रखिएगा क्या बनेगा, एमाइन बनेगा। तो दिस इज द आल्सो द एग्जांपल ऑफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज रिएक्शन विद thionyl chloride। द फोर्थ एग्जांपल दैट इज reaction with thionyl chloride. The fourth point that is reaction with thionyl chloride. Thionyl chloride. Listen, thionyl chloride student मतलब SOCl2. The reaction with thionyl with SOCl2. देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, कोई भी अल्कोहल हमने ले लिया ROH, इसका हम रिएक्शन SOCl2 से करा दिया। दिस इज द thionyl chloride, दिस इज thionyl chloride, thionyl chloride। अब क्या होगा भाई, ये किसके प्रेजेंस में होगा, पायरीडीन के प्रेजेंस में। अब क्या होगा बच्चा पार्टी, सेम वही चीज, यहां से इसका क्लीवेज होगा। क्लीवेज में क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगी प्लस, अब जरा सुनिए, इसमें से एक H एक Cl से रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन कर देगा, HCl। अब जरा सुनिए, मार्क करने चला वापस देखिए, यहां पर अगर ये बचा क्या, एक सल्फ, ये इससे रिएक्ट करके SO2 बन गया, एक H एक Cl से रिएक्ट करके क्या बना लिया, HCl। अब बचा क्या भाई, एक R बचा और एक Cl बचा, तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, RCl। अब ये रिएक्शन आप किसी तरह भी लिख सकते हो, आप इसकी जगह पे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CH2OH, इसका रिएक्शन हम किससे करा लिया, SOCl2 से, किसके प्रेजेंस में, पेरिडीन के। सेम प्रोसेस वही होगा, यहां से क्लीवेज, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई, SO2 बना लिया प्लस, अब क्या होगा, इसका एक H इसके एक इससे रिएक्ट करके एक Cl बना गया। अब बचा क्या भाई, यहाँ पर एक Cl यहीं पर ऐड हो जाएगा, तो बन क्या गया, CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CH2 CH2 और लास्ट में क्या लग जाएगा, Cl, जहां से बॉन्ड क्लीवेज हुआ। तो इसका नेम क्या हो गया, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 कार्बन आर देयर, तो दिस इज क्लोरोप्रोपेन। द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज क्लोरोप्रोपेन। So generally these reactions are involve the cleavage of CO bond. So there are the two examples, that one reaction involving the cleavage of OH bond, means O और H के bond का cleavage हुआ। The second that is reaction involving the cleavage of CO bond. Now we discuss the third, that is the reaction involving both cleavage of alkyl group and the हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हम करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ बोथ अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी अब हम उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिसमें दोनों इन्वॉल्व होता है, किसका, अल्काइल ग्रुप का भी क्लीवेज होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी क्लीवेज होगा। मे बी द वीडियो इज टू लॉन्ग, सो वी डिस्कस दिस पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, all of you see this video carefully and try to understand the concept behind this. Goodbye.